Good afternoon, students. Today we'll start with a naive-Bayes example. So that we are going to solve with a naive-Bayes theorem that we have seen in a previous lecture. So for solving the naive-Bayes classifier example, you require a training data set. So this is a training data set that we are considering for this example. Here, the last column, that is, here the last column, play golf, is a class label. So here the class label is having two different values, yes and no. So this is a class label, that is play golf. Then the remaining attribute, that is outlook, temperature, humidity and wind. These four different attributes is an input attribute. तो जो ट्रेनिंग डेटा सेट दिया है, ट्रेनिंग डेटा सेट में हमेशा दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट पार्ट हमेशा होता है क्लास लेबल, एक कॉलम जिसको हमको आगे जाके प्रेडिक्ट करना है, और बचे हुए जो एट्रीब्यूट होते हैं जो उसको हम बोलते हैं इनपुट एट्रीब्यूट, जिसकी वैल्यू के ऊपर आपका प्रेडिक्शन क्लास जो है वो डिपेंड रहता है. सो आफ्टर you got the training data set, you have to solve this example step by step. So सबसे first step, the first step is whatever is your class attribute, find out what are the different values are available for that attribute. So by seeing this last column, we can understand there are only two values are there, yes and no. And how many times or how many, then next step is we have to find out how many rows are there. So if you consider like यहाँ पे कितने total rows है हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. So total 14 rows are there. ओके तो हमने फाइंड आउट किया कि टोटल रोज है 14. अब 14 में से नो वैल्यू कितनी बार आ रही है 1, 2, 3, 4 and 5. So out of 14 the no is coming for 5 times. Now how many times the yes is coming? तो जैसे हम लोगों ने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So out of 14, 9 times the value yes is coming. So this is a frequency for play golf class level. So यही चीज हम हमारे frequency table में यहाँ पे find out करेंगे. Likewise कि हमने लिखा play golf, total rows are 14. 14 rows में से दो values है yes and 9. Yes is coming 9 times and no is coming 5 times. So the yes is coming 9 times out of 14 rows. इसके लिए हमने लिखा इसकी probability जो है इस क्लास की, दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे ये वैल्यू है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास सी, दैट इज क्लास ऑफ प्ले गोल्फ, व्हेन द वैल्यू इज यस, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ यस. और सेम ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ नो. सो रिमेंबर दिस इज वी रिक्वायर फॉर नेक्स्ट स्टेप. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी वैल्यूज. So next step we are going to find out, like after this frequency table, we are again going to find out the frequency for each and every attribute. So if you consider like the outlook is a one attribute, so outlook में total different values जो है वो कितने अलग अलग values आ रही है. First is rainy 1, 2, 3, 4 and 5 times. Okay, rainy value आई है हमारी, हम नीचे से मैं start कर रही हूँ. rainy value 5 times आई है. तो 5 में से फर्स्ट टाइम क्या आया है नो, देन अगेन नो, देन यस वैल्यू, अगेन नो वैल्यू एंड अगेन यस वैल्यू. मतलब यस 2 टाइम्स आया है और नो आया है 3 टाइम्स. ओके तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि नो आया है यहाँ पे 3 टाइम्स और यस आया है यहाँ पे 2 टाइम्स. और टोटल वैल्यूज यानी कितनी हो गई, दोनों का एडिशन किया तो रेनी कितनी बार आया है 5 टाइम्स के लिए आया. ओके और ऐसे हमको निकालना है सेकेंड फॉर ओवरकास्ट एंड सनी. इफ आई कंसिडर नाउ फॉर ओवरकास्ट 1, 2, 3 एंड 4, 4 टाइम आया है. 4 टाइम यहाँ पे वैल्यू आई है यस, यस, यस एंड यस. चारों बार क्या आया है वैल्यू यस आई है ओवरकास्ट के लिए, नो के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है, 0. सो टोटल 4 rows of forecast, all is saying that play golf is yes. सेम ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वैल्यू क्या है सनी.
सनी आया है कितनी बार? 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स. ओके, 5 टाइम में से यहाँ पे आया है yes, yes, then no, then yes and then no. तो नो आया है 2 टाइम्स, यस आया है 3 टाइम्स. ओके, अब सेम यहाँ पे हम इसका ये हो गया सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल. अब ये फ्रीक्वेंसी टेबल को हमको कन्वर्ट करना है लाइक्लीहुड टेबल में. सो नाउ हाउ टू डू दैट? So very simple. So this is your frequency table. Now you can see here in the frequency table कि total yes की value, अगर हम yes की value total addition करते हैं इन सब के addition, तो total values कितनी आई है yes के लिए? no. और total no के लिए values कितनी आई है? 5 आई है. Okay, ये आपको consider करना है. And इसका लाइक्लीहुड टेबल बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. यहाँ पे जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को डिवाइड बाय करना है टोटल वैल्यू से. अगेन इस वैल्यू को डिवाइड करना है टोटल से, इस वैल्यू को डिवाइड करना है टोटल से, इस वैल्यू को डिवाइड करना है इधर आए हुए टोटल से. सो वैल्यू इसकी आ जाएगी 3/9, जो हमने यहाँ पे लिख दिया 3/9, देन 4/9, 2/9, देन 2/5, 0/5 एंड 3/5. तो यहाँ की वैल्यू को डिवाइड बाय 5 किया, यहाँ की वैल्यू को डिवाइड बाय 9 कर दी हम लोगों ने. सो लाइकवाइज जैसे हमने एक एट्रीब्यूट का लाइक्लीहुड टेबल हमने कंसिडर किया है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लाइक्लीहुड टेबल फॉर टेम्परेचर. लाइक टेम्परेचर के लिए 3 डिफरेंट वैल्यूज है. देन फॉर ह्यूमिडिटी 2 वैल्यूज आर देयर, हाई एंड नॉर्मल in the table. Again for windy there are again 2 values, that is false and true. Okay, so likewise we have calculated these values. Then next step, now this is here our training is completed. Now we have to test our model by on a test data or on unseen data. So this is an example for your test data, that is for unseen data, that is a row which is not available in your table. ओके, अगर आप देखोगे आपके टेबल में चेक करोगे तो ये वाली रो वहां पे अवेलेबल नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी. तो अगर ऐसा कोई अनसीन डेटा आता है एंड यू हैव टू प्रेडिक्ट द क्लास कि यहाँ पे क्लास यस आएगा प्ले गोल्फ के लिए या फिर नो आएगा. सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट like what will be the probability for yes and what will be the probability of no, कि yes के लिए probability क्या रहेगा, no के लिए probability क्या रहेगा. So हमको चेक करना है कि probability of yes, कि हमारा जो फॉर्मूला है, the formula for our Bayes theorem का जो फॉर्मूला है, that is probability of class, that is P of C by A is equal to the probability of attribute, each and every attribute for that class multiply by probability of that class divided by probability of attribute. Okay, so now here we are considering the value for class as yes. हमको फाइंड आउट करना है कि yes के लिए प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा और no के लिए कितना रहेगा. तो स्टार्टिंग में हमने कंसिडर किया है P of C, दैट इज क्लास एज yes. तो इसके लिए यहाँ पे आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ yes. ओके, और हमको ये अनसीन डेटा के लिए निकालना है, पूरे रो के लिए निकालना है, इसके लिए मैं उसको कंसिडर कर रही हूँ yes यहाँ पे. अब यहाँ पे हमको हर एट्रीब्यूट के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एट्रीब्यूट बाय दैट क्लास. ओके, क्लास क्या है हमारा? यस है. और एट्रीब्यूट क्या क्या है हमारे? आउटलुक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है एंड विंड है. तो हर वैल्यू के लिए निकालेंगे. तो फर्स्ट टाइम हम एट्रीब्यूट कंसिडर करेंगे आउटलुक. आउटलुक के लिए वैल्यू क्या आई है? रेनी. ओके, और क्लास की वैल्यू हम क्या कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे? यस. ओके, तो इसके लिए हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी फॉर यस. Then next attribute is temperature, the value is cool. So probability of cool for yes, then probability of high for yes, probability of T for yes, and last is the probability of class.
सो क्लास क्या है हमारा, अभी हम कंसिडर कर रहे हैं यस, तो हमको निकालना है कि यस की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है। एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया था दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यस इज 9/14 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इज 5/14। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कितनी है 9/14, ये हमको पता है, इसके लिए इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दी है 9/14। अब ये सब वैल्यूज जो है ये हम कहाँ से फाइंड आउट करने वाले हैं, जो हमने लाइकलीहुड टेबल बनाया है इसके पहले वहां से। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि रेनी की वैल्यू क्या है, जो प्ले गोल्फ की वैल्यू यस थी। ओके, लाइकवाइज फॉर कूल, फॉर हाई एंड फॉर टी। सो हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप, प्रीवियस जो हमारी स्टेप थी उसके लिए, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमको जो फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी व्हेन द वैल्यू इज यस क्या थी। ओके, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कोल्ड जब वैल्यू यस थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई वैल्यू यस थी, और प्रोबेबिलिटी फॉर विंडी टी वैल्यू यस थी। तो ये आगे है 2/9, 3/9, 3/9 एंड 3/9। ये वैल्यूज हम हमारे फॉर्मूले में यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे 2/9 इंटू 3/9 इंटू 3/9 इंटू 3/9 एंड लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास यस 9/14। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे वैल्यू हमको मिल गई है। लाइकवाइज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सेम फॉर्मूला, बट इंस्टेड ऑफ यस नाउ वी आर कंसिडरिंग व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फॉर ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट। ओके, तो फॉर रेनी जब नो था, कूल जब नो था, हाई जब नो था, और टी जब नो था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हमको ऑलरेडी पता है 5/14। तो इन सब की वैल्यूज जो है हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट टेबल जो हमने देखा था प्रोबेबिलिटी का, सो फॉर रेनी व्हेन द वैल्यू इज नो इज 3/5, फॉर कोल्ड इट इज 1/5, फॉर हाई 4/5 एंड फॉर टी इट इज 3/5। ओके, ये वैल्यू अभी आप याद रख लो, यही वैल्यू हम लोगों को ये सेकेंड वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे हमने क्या किया, इस वैल्यूज को पुट कर दिया एंड वी हैव सॉल्व दिस। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई है 0.020। नेक्स्ट स्टेप है कि अब हमको फाइंड आउट हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एट्रीब्यूट व्हेन वी आर कंसीडरिंग द प्ले गोल्फ क्लास यस, आ गई है 0.0052 एंड फॉर नो वैल्यू आई है 0.020। So by comparing this we can understand the probability of no is more than probability of yes. So the answer is now for this given row is, we are going to write down it is an no. तो यहाँ पे हमको पता चल गया है कि इस एट्रीब्यूट के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है, नो है। So likewise you can solve this example. I hope you have understood this.